Through this development, we are not just building infrastructure, we are creating over 13,000 direct and indirect job opportunities. Yet, what sets Terminal 3 apart is not just its scale or sophistication of its facility. It's the heart and the soul we have poured into incorporating Uttar Pradesh's rich cultural heritage into its design. From the moment travelers set a foot in Terminal 3, they are greeted with the Swagat Wall, a magnificent display that captures the essence of Lucknow skyline, leading them through an immersive journey that includes the floral festivity of Basant Bahar, the serene beauty of the Ghats of Uttar Pradesh, and the innovative reflection of Rohu. In addition, our embrace for cutting-edge technology and sustainability practices positions us as a leader in the aviation sector. Initiatives such as DG Yatra for biometric, self-service kiosks, and automated baggage system not only streamline the travel experience, but also reflects our commitment to innovation and efficiency. Furthermore, our sustainability features ensures that while we expand, we remain guardians of the environment, optimizing natural light, reducing waste, and conserving energy. Ladies and gentlemen, through T3, we not only aim to create a world-class airport, but we also want to transform it into a symbol of pride for Lucknow and Uttar Pradesh. It is the perfect testament to what we can achieve when we work together. We also take pride in our commitment to environmental sustainability. Our ecological footprint has been minimized to preserve the natural beauty of our surrounding for future generations. Because of our chairman, Shri Gautam Adani often says, growth must always be with goodness. All this would not have been possible without the unwavering support and guidance of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath. Honorable Chief Minister, your unwavering commitment to ensuring Uttar Pradesh's position as India's leading destination for investment and tourism has been instrumental in propelling projects like T3 forward. Your dedication to improving infrastructure and connectivity across the state mirrors the Prime Minister's grand vision for the nation. लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन पीएम मोदी कर रहे हैं। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और अदानी समूह से करण अदानी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। लखनऊ एयरपोर्ट का नया टर्मिनल 1,11,367 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। यहां से घरेलू और विदेशी दोनों ही एयर सेवाएं मिलेंगी। इस एयरपोर्ट से सालाना 1,30,00,000 से ज्यादा यात्री सफर करेंगे। नए टर्मिनल की अनुमानित लागत 1,383 करोड़ रुपए है। नए टर्मिनल में 75 चेक इन काउंटर्स होंगे, 18 चेक इन कियोस्क, 30 लिफ्ट और 5 एस्केलेटर्स हैं। इस एयरपोर्ट का संचालन अदानी समूह करेगा। तो आपको बताएं कि लखनऊ एयरपोर्ट के टर्मिनल का आज लोकार्पण हो रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये एयरपोर्ट और यहां से आवागमन न केवल विदेशी उड़ानें यहां से होंगी बल्कि घरेलू उड़ानों की संख्या में भी इजाफा होगा। 3200 घरेलू उड़ानें, 800 विदेशी उड़ानें यहां से संचालित होंगी। इसके अलावा अगर हम इस बात करें इस पूरे एयरपोर्ट की, तो इस एयरपोर्ट का जो दायरा है, जो इसका एरिया है, वो 1,11,367 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। और जैसा कि हमने आपको बताया, यहां से घरेलू और विदेशी दोनों ही एयर सेवाएं संचालित होंगी। इस एयरपोर्ट से सालाना 1,30,00,000 से ज्यादा यात्री सफर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर और उनके हिसाब से अत्याधुनिक सुविधाओं से तैयार किया गया है इस नए टर्मिनल को। नए टर्मिनल की जो अनुमानित लागत है वो 1,383 करोड़ रुपए। जिनके विजन, जिनके डेडिकेशन और जिन्होंने इस देश को विश्व स्तर के ऊपर आगे ले जाने का संकल्प लिया है, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी,
इस कार्यक्रम में उपस्थित जिन्होंने लखनऊ को एक नया स्वरूप दिया। जिस समय वो माननीय मुख्यमंत्री थे तब, और उस बात को आगे बढ़ाते हुए आज जिसमें वो रक्षा मंत्री हैं तब एक नया स्वरूप जिन्होंने दिया, ऐसे हम सबके लिए बहुत ही आदरणीय रक्षा मंत्री परमश्री श्री राजनाथ जी। उत्तर प्रदेश में जुझारू उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, हमारी लखनऊ की महापौर, हमारे माननीय विधायक श्री राजेश्वर जी, अडानी ग्रुप के भाई करण अडानी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे सम्मानित बंधुओं, भाइयों और बहनों, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि इस देश का नेतृत्व आज ऐसे सक्षम हाथों में है जिन्होंने इस देश की प्रगति, इस देश के विकास और इस देश के छोटे व्यक्ति से लेकर हर स्तर के ऊपर जिन्होंने चिंता करी, ऐसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री। और इस प्रदेश को एक नया स्वरूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपना विगत 7 वर्षों का कार्यकाल रहा है, उसमें एक प्रगति दिख रही है। लेकिन इसके साथ साथ जिस समय रक्षा क्षेत्र की बात करें, क्योंकि मैं आदरणीय श्री राजनाथ जी की कृपा से मैं कई विभिन्न पदों के ऊपर इनके आशीर्वाद से उनके कारण रहा हूँ, तो मैं विगत 5 वर्ष इंडस्ट्री मिनिस्टर, इंडस्ट्रियलाइजेशन में जिस प्रकार से रक्षा क्षेत्र में जितनी बड़ी उड़ान भरी है, वो रक्षा क्षेत्र जो विदेशों से अपने हथियार मंगाया